look at question number 7. Find the combined equation of the pair of lines through the origin and making an equilateral triangle with the line y is equal to 3. कैसे होगा देखो. तो line y is equal to 3 is given to you. We have to draw an equilateral triangle. अभी इक्विलैटरल का मतलब होता है जिसका सारा साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स भी इक्वल. सो इफ दिस इज वन ऑफ द साइड्स, अगर ये एक साइड है तो एक और साइड ऐसे बनेगा. बिकॉज व्हाट ही सेज थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये एक साइड रहेगा, ये दूसरा साइड रहेगा. देयर आर लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. लाइन ओरिजिन में से जा रहा है और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है y is equal to 3 के साथ. सो इफ आई से दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये आएगा 60, ये भी आएगा 60 और ये भी आएगा 60. So ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. Now you have to find the combined equation of these two lines. अभी कोई भी दो लाइंस अगर मैं लेता हूं जो ओरिजिन में से जाते हैं, any two lines, when any two lines or rather when any line passes through the origin, when any line passes through the origin, the equation will be y is equal to mx. उसका इक्वेशन y is equal to mx के फॉर्मेट में रहेगा जब भी कोई लाइन ओरिजिन में से जाता है तभी. तो यहाँ पर दोनों लाइंस ओरिजिन में से जा रहा है. तो लेट्स से दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2. तो दोनों लाइंस को मैंने नाम दे दिया L1 एंड L2. नाउ L1 और L2 का इक्वेशन लिखने के लिए मैं ये फॉर्म यूज कर सकता हूं y is equal to mx, where m is the slope. तो मेरे को स्लोप का जरूरत है. तो let L1 and L2 be the two lines passing through origin and making an angle and making an equilateral triangle. Equilateral triangle with y is equal to 3. Making an equilateral triangle with y is equal to 3. तो अभी देखो ये लाइन L1 का slope of line L1 will be tan. अभी ये अगर देखा जाए तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो if this is 60 तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 हो जाएगा. तो ये लाइन का जो इंक्लिनेशन है दैट इज 60. सो स्लोप ऑफ लाइन L1 will be tan 60 which is root 3. tan 60 is root 3. ओके, सो ये मुझे मिला फॉर एग्जांपल M1 मिल गया. सेम वे slope of line L2 which is tan. अभी देखो ये 60 है, 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा. 60 प्लस 60 is 120. तो tan of 120 हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? tan of 180 minus 60. So tan of 120 आ जाएगा. Sorry, tan of 180 minus theta is the second quadrant. And in the second quadrant tan is negative. So I can say this is minus tan 60 which is minus root 3. तो ये मेरे को मिला M2. तो M1 M2 दोनों मिल गया. Now I can take the individual equations. So equation of line L1 will be y is equal to m1x, that is
root 3x. That is, I can say root 3x minus y is equal to 0. This is your equation number 1. Same way, equation of line L2 वो भी वही फॉर्मेट है. Equation of line L2 will be y is equal to m2x, that is y is equal to m2 कितना है minus root 3x. So this will be, can I say here root 3x plus y is equal to 0. Now if I want to get the combined equation, मैं इसको multiply करता हूँ. So combined equation is, let's multiply these two. एक root 3x minus y into root 3x plus y is equal to 0. So when I multiply these two, what do I get? ये दोनों को multiply करने पे a minus b plus b हो जाएगा. That is root 3 का square आएगा 3x square minus y square is equal to 0. This is the combined equation. So this is 3x square minus y square is equal to 0. This is your final answer. Let's come to the next question. बोला if the slope of one of the lines is given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Okay, एक और बात before I go ahead. ये सेकंड लाइन का एंगल 120 कैसे आया? तो अगर मैंने पूरा काउंट कर लिया 60 प्लस 60 यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो ये 120 आ जाएगा. तो सेकंड लाइन का एंगल 120 आया, फर्स्ट लाइन का एंगल 60 आया, और मैंने इसको आगे सॉल्व किया. ओके, तो दिस वाज अबाउट सम नंबर 7. We'll come to sum number 8 now. If the slope of one of the lines is given by, ये लाइन है, इस स्लोप इज 4 टाइम्स द अदर. बोला है स्लोप जो है वो 4 टाइम्स. तो कहना है इससे स्लोप ऑफ वन लाइन लाइक द स्लोप ऑफ लाइन्स, ओके, गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. B m1 and m2. तो स्लोप्स मैंने ले लिया m1 and m2. अभी उसने कंडीशन क्या दिया मुझे? m1 is 4 times m2. This is given to me. This is given to me. But we already know कि स्लोप का जो फॉर्मूला सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमको ऑलरेडी पता है. सो लेट्स यूज दैट. सो वी नो m1 plus m2 is minus 2h upon b. m1 plus m2 क्या होता है? minus 2h upon b. तो अगर मैंने ये वैल्यू इधर डाला तो आई गेट 4m2 plus m2 is equal to minus 2h upon b. 4m2 plus m2 is 5m2 is equal to minus 2h upon b. तो m2 कितना मिलेगा मुझे? minus 2h upon 5b. This is what you get. Let's say this is 1. Okay, ये मुझे मिल गया m2 is minus 2h upon 5b. ना इससे कुछ कंक्लूड तो नहीं हो रहा है, सच m2 का वैल्यू मुझे मिल गया. Okay, what I'll do, I'll use second also. सेकेंड वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. m1 into m2 क्या रहता है? a upon b. m1 into m2 होता है a upon b. नाउ ये दोनों किसके लिए है? ये दोनों ऑफ कोर्स ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 पे ही वर्क करेंगे. सो आई विल बी यूजिंग दिस. नाउ m1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4m2 into m2 is equal to a upon b. Now 4m2 into m2 मतलब ये कितना आएगा? 4m2 square is equal to a upon b. Now what is m2 over here? You can clearly see. अगर m2 का स्क्वायर किया तो यहाँ जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4. इसका आएगा x स्क्वायर और नीचे आएगा 25 और ये आएगा b स्क्वायर is equal to a upon b. Now if you cross multiply this, what do you get finally? 16. Okay, this b will cancel out. 16h square is equal to 25
AB is what you get and that is what is required. यही तुमको फाइंड करना है इसमें. 16x square is equal to 25. Let's come to the last question. That is question number 9. बोला है if one of the lines given by ax square plus 2hxy plus dy square bisects an angle. Bisect मतलब exactly दो इक्वल पार्ट. तो ये क्वाड्रेंट का अगर दो इक्वल पार्ट हो गया तो 90 डिग्री का दो इक्वल पार्ट मतलब 45 45. तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है. तो 45 45 अगर एक लाइन ऐसा भी हो सकता है या तो एक लाइन ऐसा भी हो सकता है. तो ये लाइन भी तो 45 45 कर रही है. ओके, बट अगर मैंने दोनों लाइन ले लिया L1 और L2 तो L1 और L2 के हिसाब से कैन आई से स्लोप ऑफ L1. ओके, लेट्स से let L1 and L2 be the two lines which can bisect the coordinate axis. तो L1 और L2 दोनों ले लिया तो स्लोप ऑफ L1 क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ L1 आ जाएगा tan 45 which is 1. ओके, स्लोप आ जाएगा tan 45. सेम वे स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाएगा? tan ऑफ. अभी देखो एक 45 है, दूसरा कितना आएगा? 45 प्लस ये भी 45 है. 45 45 मतलब ये आएगा 135. सो tan ऑफ 135 विल बी -1. ये कहां से आया? तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये tan ऑफ 180 - 45 लिख सकते हैं. एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव सो इट इज -tan 45. इट इज -1. तो ये मुझे मिला -1. नाउ दोनों स्लोप्स देखा जाए तो मतलब दो पॉसिबिलिटी है. आई कैन गेट 1 और आई कैन गेट -1. सो आई कैन से द स्लोप इफ आई जनरलाइज इट m इज इक्वल टू +-1. तो ये जो स्लोप्स है दिस इज नथिंग बट दिस स्लोप्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, नाउ दीस आर द रूट्स ऑफ व्हाट? दिस इक्वेशन ax square plus 2hx square plus dy square के हिसाब से जो मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन उसके रूट्स है. सो दीस स्लोप्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, bm square plus 2hm plus a is equal to 0 and therefore I can put this value over here. तो अगर मैंने ये वैल्यू इधर डाला तो a आएगा +-1 का स्क्वायर plus 2h plus -1 plus a is equal to 0. तो ये हो जाएगा b +-1 स्क्वायर मतलब b × 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा +-2h plus a is equal to 0. अगर मैंने a और b उधर लेके गया मैं और यहाँ पर अगर +-2h लिखा and if I square this on both sides, if I square this तो क्या मिलेगा? 4x square is equal to, can I say a plus b the whole square on squaring. स्क्वायरिंग करने से प्लस माइनस चला जाएगा. ये दोनों माइनस अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो भी प्लस ही हो जाएगा. तो यू विल गेट a plus b the whole square is equal to 4x square. या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a plus b the whole square is equal to 4x square. This is what is the required equation.